Yes, good evening, all of you. Today we will be running revision class for second segment of our economics syllabus. We will be covering BCK part. Second segment of our economics, business commercial knowledge. This carries 40 marks. And the chapters that we'll be revising today are business commercial knowledge, a discussion about business environment, a discussion about business organization, where we'll be discussing about top MNCs and top Indian companies. We'll be discussing about government policies for business growth, and we will be discussing about organizations in India, government organizations, which facilitates business in India. And in the end, we'll round up with discussing very important common business terminologies which have evolved these days and which is too often used in our business parlance. Okay, perhaps most of you have joined. So let's begin with the things. Let's start with a little discussion about business commercial knowledge. This is our chapter number 1. This is also an introduction chapter where we will be able to know about this segment. As chartered accountant, we should be having lots of business commercial knowledge because we do not know for which type of organization we are supposed to prepare accounts, for which type of organization we are supposed to carry audits or investigations. So we should be knowing the pulse of business, the terms, the terminologies which are used, the ways the business are carried, the online medium, the online payment systems, the gateways. We should be aware of all these things. Only then we'll be able to discharge our responsibilities, our functions as chartered accountants properly. Now, BCK is something which is very huge, as it covers all activities which are related to earning of income. Also, it covers activities which is related to spending of income. If we just want to see the sphere, the scope of BCK, as I have already told you, it is very huge. So it covers all activities relating to manufacturing, trading, whether it is domestic trade, whether it is a foreign trade, all aids or trade or auxiliaries to trade, for example, transportation, banking, insurance, all is covered within the sphere, influence, or you can say area of focus or domains of BCK. All types of scale of business, चाहे वो छोटा है, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज एंटरप्राइज, सब BCK के दायरे में आता है बेटा. हर तरीके का बिजनेस, चाहे वो लोकल है, नेशनल है, मल्टीनेशनल है, हर तरीके की ऑनरशिप, चाहे वो सरकारी कंपनी है, सेमी सरकारी कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, हर तरीके की मार्केट्स, चाहे वो रिसोर्सेज की है, इक्विपमेंट्स की है, कैपिटल की है, लेबर की है, फाइनेंस की है, बिजनेस में रुचि रखने वाले हर प्रकार के स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट BCK के डोमेन में कवर होता है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, कस्टमर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, गवर्नमेंट है, डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, कोई भी लोग हैं, इन तीन लोग के कोई ना कोई इंटरेस्ट हमारे बिजनेस में जुड़े होते हैं. प्रॉफिट्स, टैक्सेस, रिटर्न्स, इंटरेस्ट, डिविडेंड, इस रूप से हमारे साथ इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं. उन सब के इंटरेस्ट को हम BCK के डोमेन में कवर करते हैं बेटा. हर तरीके का बिजनेस में परफॉर्म किया जाने वाला फंक्शन, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, टैक्सेशन हो, HR हो, इसके अंदर आता है. चाहे एक कंपनी कई सारे बिजनेसेस रन कर रही है या सिर्फ सिंगल लाइन रन कर रही है, एक ही बिजनेस है या मैनी बिजनेसेस एक साथ रन करती है, ये सब कुछ इसके अंदर आता है बेटा. कंपनी क्या लॉन्ग रन में सरवाइव करेगी, उसका प्रॉफिट क्या होगा, उसकी ग्रोथ क्या होगी,
क्या वो सस्टेन कर पाएगी, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डिस्चार्ज करेगी, बीसीके में कवर होता है। वैल्यूज एंड एथिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आज की डेट में जो कंपनीज आउट परफॉर्म करती हैं, आउटशाइन करती हैं, उनको वैल्यू सिस्टम फॉलो करती हैं, कोई एथिक्स फॉलो करती हैं। हर तरीके की सब्जेक्ट की नॉलेज भी हमारे को बीसीके के डोमेन में कवर करनी पड़ती है, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, लॉ से रिलेटेड हो, फिलॉसफी से रिलेटेड हो, साइकोलॉजी से रिलेटेड हो, सोशियोलॉजी से रिलेटेड हो। और मैं ये कह दूं कि एक मैंने आपको इलिस्ट्रेटिव व्यू दिया है, एग्जॉस्टिव व्यू अभी भी नहीं दिया है। इसका मतलब बीसीके एक बहुत बड़ा डोमेन है, इसमें हर तरीके की बिजनेस से रिलेटेड कोई भी बात है वे इसके अंदर कवर होती है। यही मैंने लिखा भी है इसके फीचर्स में कि बीसीके वास्ट होता है, बीसीके मल्टी डिसिप्लिनरी होता है। मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि इसमें हम कई सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज को एक साथ यूज करते हैं, चाहे मार्केटिंग है, चाहे अकाउंटिंग है, चाहे टैक्सेशन है, चाहे लॉ है, जो भी मेरे बिजनेस को प्रभावित करता है वो सारे सब्जेक्ट्स बीसीके में कवर होते हैं। बीसीके की जो वोकैबुलरी है, जो शब्दावली है, वो कई और सब्जेक्ट से उधार ली गई है। इसकी अपनी शब्दावली भी है और कई चीज़ें हमने और सब्जेक्ट से उधार भी ली हैं। मैंने कुछ का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया बेटा। जैसे शब्द हम बिजनेस में कई बार इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी एक शब्द है जो कि मिलिट्री में यूज़ होता था, क्योंकि उनको स्ट्रेटेजाइज करना पड़ता था, कब कितनी सेना कहाँ पर इकट्ठी होगी और फिर कैसे अटैक करेंगे, किसको अटैक करेंगे, दिस देयर यूज्ड टू बी अ स्ट्रेटेजी। तो ये शब्द मिलिट्री से उठाया गया और बिजनेस में यूज़ हो रहा है। इसी तरह से बुल्स, बियर्स, ये एनिमल किंगडम के वर्ड्स हैं। बुल्स मतलब कि मार्केट में उछाल आना, बियरिश फेज मतलब मार्केट में गिरावट आना। तो बीसीके की जो शब्द हैं वो हमने दूसरे सब्जेक्टों से भी उठाए हुए हैं, इसीलिए हम कहते हैं बीसीके इज़ वेरी वेरी वास्ट। और ये शब्द रुक नहीं रहे हैं बेटा, आए दिन प्राय दिन हम देखते हैं नए नए वर्ड्स जौन से हैं वो इसमें ऐड हो रहे हैं। जैसे B2B, बिजनेस टू बिजनेस, B2C, बिजनेस टू कस्टमर, जैसे 24/7, ये शब्द ऑनलाइन पेमेंट्स, ये शब्द पहले नहीं हुआ करते थे क्योंकि ये चीज़ें ही नहीं होती थी। इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, GSTN, ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी। तो अब जैसे जैसे बिजनेस इवॉल्व कर रहा है, नए नए टर्मिनोलॉजीज भी आ रही हैं और कई पुरानी टर्मिनोलॉजीज छूट भी रही हैं। सो हमारे को अगर बीसीके की नॉलेज अपने में इनकलकुलेट करनी है तो हमें कई नई चीज़ों को सीखना पड़ेगा, और पुरानी चीज़ें जिनकी आज की डेट में कोई यूज़ नहीं रह गया है, रिडंडेंट हो गई हैं, उन्हें छोड़ना भी पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही बोला बीसीके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को या तो अकाउंट्स बनाने हैं या अकाउंट्स ऑडिट करने हैं। अगर उनको बिजनेस कमर्शियल नॉलेज नहीं होगी तो वो अपने फंक्शंस को प्रॉपरली डेलीजेंटली डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये सब्जेक्ट आपके सिलेबस में बनाया भी गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये आइडियाज़ होने चाहिए कि अगर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिजनेस हैं, बेकरी बिजनेस है, आपका बॉटलिंग बिजनेस है, कोल्ड ड्रिंक बॉटलिंग बिजनेस है, या आपका टेक्सटाइल बिजनेस है, इनमें मेन शब्द क्या यूज़ होते हैं, इनकी बिजनेस लाइंस क्या होती हैं, इनमें कॉस्ट कहाँ कहाँ पे इनकर होती है, यहाँ पे कब कब प्रॉफिट आता है, किन चीज़ों को घटाने बढ़ाने से प्रॉफिट के ऊपर असर पड़ता है, प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ता है। क्योंकि अगर वो ये नॉलेज उसको होगी तभी वो विजुलाइज कर सकता है कि खाते भी जौन से बनाए गए हैं या जो वो चेक कर रहा है वे सही हैं या नहीं है। सो बिजनेस कोशेंट या बिजनेस कमर्शियल नॉलेज बढ़ाने से चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्या आती है, सेल्फ अश्योरेंस, कॉन्फिडेंस आता है बेटा उसको कि जो मैं कर रहा हूँ, जो ट्रांजेक्शन्स मैं चेक कर रहा हूँ, क्या वे सही भी हैं या नहीं है। और बिजनेस कोशेंट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट होना ही ज़रूरी है। नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स, कॉमर्स बैकग्राउंड कोई हैंडीकैप नहीं है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट्स को भी बिजनेस की पल्स हो सकती है। और हम बिजनेस सीखते कैसे हैं, बिजनेस कमर्शियल नॉलेज आती कैसे है। कोई मेरे पास कोई ऐसी पिल नहीं है कि मैंने आपको खिला दी और आपको सारी आ गई, धीरे धीरे आती है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, अखबारों को पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, अपना मैगजीन्स को पढ़ते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, हमारी बिजनेस कमर्शियल नॉलेज इवॉल्व होती है। सो ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस आर द बेस्ट गाइड्स। और
इसके बाद हमारे को कभी ये मान नहीं लेना चाहिए कि हमें बहुत कुछ आ गया। रेगुलर प्रैक्टिस एंड इम्प्रूवमेंट्स हमारे को रिएक्टिव थिंकिंग के साथ करनी है, तभी हमारे अंदर क्या आएगी, परफेक्शन आएगी। अब इस चैप्टर में ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में भी कुछ हमारे पास कवरेज है। ह्यूमन एक्टिविटीज हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं दो हिस्सों में, या तो वो इकोनॉमिक उद्देश्य के साथ करी जाती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज, या फिर नॉन इकोनॉमिक उद्देश्य से मेरी हॉबी है, मुझे कोई चॉइस है, मुझे किसी चीज़ से सेल्फ ग्रेटिफिकेशन होती है, सेटिस्फेक्शन होती है, सेवा का भाव है, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सो इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान है कि हम उसे लाइवलीहुड मोटिव के लिए परफॉर्म करते हैं, पैसा अर्न करने के लिए परफॉर्म करते हैं, सरवाइव करने के लिए परफॉर्म करते हैं बेटा। और इसको अगर हम क्लासिफाई करें तो हम कहते हैं बिजनेस करना, प्रोफेशन एक्सरसाइज करना, या नौकरी एम्प्लॉयमेंट करना, दीज आर माई इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बिजनेस चाहे छोटा हो बड़ा हो, कहीं पर भी लोकेटेड हो, किसी प्रकार की भी ऑनरशिप में हो, ये सब कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना, अपनी लाइवलीहुड के लिए पैसे को अर्न करना, ऑल फॉल्स विद इन द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जहाँ तक बात है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए, तो हम कहते हैं जब आप किसी चीज़ को आउट ऑफ अफेक्शन, लव फॉर फैमिली, पैशन या किसी हॉबी की वजह से आप कर रहे हैं, एनिमल राइट्स के प्रति आप बहुत जागरूक हैं, प्लांट्स के प्रति आप बहुत जागरूक हैं, एजुकेशन टू द मासेस के बारे में आप बहुत जागरूक हैं, और इस चीज़ को आप प्रमोट करते हैं विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव, देन वी से यू आर परफॉर्मिंग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ रेशनैलिटी जुड़ी होती है और सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ। और हमें ये भी मालूम है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में भी इकोनॉमिक डायमेंशंस हो सकती हैं। हो सकता है आपने कोई ट्रस्ट का हॉस्पिटल खोल रखा हुआ है और वहां पे आप कम पैसों का इलाज प्रोवाइड करते हैं, मगर जो लोग काम करने आ रहे हैं बेटा, डॉक्टर्स नर्सेस, वो तो तनख्वाह लेंगे ना। और जो हॉस्पिटल बनाओगे उसमें इक्विपमेंट्स भी पैसे देकर ही आएंगे, बिल्डिंग भी पैसे देकर ही खड़ी होगी। तो भले ही आपका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, मगर इस उद्देश्य को प्राप्ति करने के लिए आपको कई सारे इकोनॉमिक फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ सकते हैं और पड़ते हैं। जहाँ तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात होती है, मैंने आपको पहले ही बोला इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, ताकि हम इनकम जनरेट कर सकें। और बेटा इनकम जनरेट, पैसा कमाने के लिए या तो आप पसीना बहाएंगे या फिर अपनी अकल लगाएंगे। इट इज आइदर स्वेट और इंटेलेक्ट। पैसा आप पैसे की फॉर्म में भी कमा सकते हैं या बाटर में भी कमा सकते हैं। से आपने काम किया, आपको 2 किलो चावल दे दिए, दिस इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी की डायमेंशन में ही आएगा। इकोनॉमिक एक्टिविटीज प्रोडक्टिव इन नेचर होती हैं, वैल्यू एडिशन होती है, चेंज इन फॉर्म, चेंज इन टाइम, चेंज इन प्लेस, कुछ ना कुछ इसके अंदर क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, जिससे कि वैल्यू क्या हो रही है, ऐड हो रही है। हंटिंग, गैदरिंग ऑफ फ्रूट, फार्मिंग, क्राफ्ट, टीचिंग, मेडिसिन, लॉ, अकाउंटेंसी, ये सारे एग्जाम्पल हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के। इवन जब आप कोई चीज उगाते हो सेल्फ कंजम्पशन के लिए, अपने खेत में 100 किलो आपने गेहूं उगाया, 40 किलो खुद खा लिया, 60 किलो बेचा, तो मैं कहूँगा इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपने परफॉर्म करी है वो 100 kgs की करी है। सबसिस्टेंस फार्मिंग ऑल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। सी एमसीक्यू में कई बारी क्वेश्चन आता बेटा। सिर्फ प्रोड्यूस करना इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, कंज्यूम करना भी बेटा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है। कंजम्पशन इज अ रिस्पॉन्स टू द प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन इज डन इन रिस्पॉन्स टू द एंटिसिपेटेड कंजम्पशन। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। हम पहले पैसे को सेव करते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं, और फिर हमें प्रॉफिट्स आते हैं, और वो प्रॉफिट्स हमारी कैपिटल को बढ़ा देते हैं, और धीरे धीरे इससे क्या होती है, कैपिटल फॉर्मेशन या वेल्थ क्रिएशन। अब जब हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, तो हम बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को भी आपस में क्लासिफाई कर सकते हैं। बिजनेस का स्पेक्ट्रम बहुत वास्ट होता है, इसके अंदर इंडस्ट्री, ट्रेड, कॉमर्स सब कुछ इंक्लूडेड होता है। प्रोफेशन मतलब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज अ प्रोफेशन,
प्रोफेशन एक प्रोफेशनल बॉडी के साथ एक पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन के साथ जुड़ी हुई है, और इस फंक्शन को डिस्चार्ज करने के लिए हमें एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट क्या करना पड़ता है, फॉलो। जबकि कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन रहती है किसमें, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप रहती है किसके अंदर, एम्प्लॉयमेंट के अंदर। एंटरप्रेन्योर का डिसीजन होता है जब मर्जी बिजनेस को स्टार्ट करे, लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट करे, और अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको फिर क्वालिफाई करना पड़ेगा, अगर आपको नौकरी करनी है तो आपके पास लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट होना चाहिए। बिजनेस में आपको प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में आपको प्रोफेशनल फीस मिलती है, नौकरी में आपको वेजेस एंड सैलरीज मिलती हैं। बिजनेस करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। प्रोफेशन के लिए स्ट्रिक्टली प्रिस्क्राइब्ड है, और नौकरी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट तो रिक्वायर्ड होगी ही। बिजनेस करना है तो बहुत पैसे लगते हैं, प्रोफेशन करना है तो उतने पैसे नहीं लगते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, मगर नौकरी करनी है तो हमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। फ्रीडम, अगर आप खुद ही बिजनेस कर रहे हैं तो आप यू आर योर ओन बॉस, फ्रीडम रहती है। प्रोफेशन में भी क्वाइट अ बिट यू एंजॉय अ फ्रीडम, बट अगर आप नौकरी करते हैं देन यू हैव नो सच काइंड ऑफ फ्रीडम। बिजनेस में टेन्यूर अनसर्टन होता है बेटा, कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ कुछ भी हो सकता है। प्रोफेशन में इट इज़ क्वाइट सर्टन, एक बार आप क्वालिफाई कर गए तो जब तक आप हैं तब तक आप प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं। नौकरी में भी क्वाइट सर्टन है, जब तक आपकी टर्मिनेशन नहीं हो रही आप जॉब कर रहे हैं। क्या आप अपने बच्चों का अपना सक्सेशन या इंटरेस्ट पास ऑन कर सकते हैं, बिजनेस में हाँ अपनी गद्दी आप आगे दे सकते हैं, प्रोफेशन में नहीं। प्रोफेशन में तो आपके बच्चे को भी क्या बनना पड़ेगा, प्रोफेशनल। और जॉब में तो कतई नहीं, आपको जॉब मिली हुई है ज़रूरी नहीं कि वही जॉब आपके बच्चों को पास हो। बिजनेस परफॉर्म किया जाता है कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, जैसे कि इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट्स कमाना, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव जैसे कि हमारे को अपनी बिजनेस के सर्वाइवल को इंश्योर करना, बिजनेस की हेल्थ अच्छी रहे, बिजनेस ग्रो करे, डाइवर्सिफाई करे, नए नए फील्ड्स आए, या बिजनेस को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए परफॉर्म किया जाता है बेटा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बोले तो क्या, कि हमारे को अपने समाज के प्रति भी जागरूकता रखनी है, आसपास के एरियाज़ को पोल्यूशन फ्री रखना है, आसपास के एरियाज़ में मेडिकल कैंप्स लगाना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना। दिस इज़ फॉलिंग बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। लीगल, एथिकल और एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना, ट्रुथफुल रहना, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, फेयर इंफॉर्मेशन देना, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस नहीं करना, ये भी बिजनेस के एथिक्स में ही फॉल करता है। हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं। या तो हम बेटा सोल प्रोपराइटर की तरह बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, अकेला एक जना बिजनेस सेटअप कर रहा है, पैसों की इसमें कमी रहेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी रहेगी, और बिजनेस का जो ग्रोथ है वो भी एक लिमिट ही रहेगा, क्योंकि एक अकेला कितना बिजनेस संभाल सकता है। या फिर बेटा हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेटअप एन HUF, एक ही फैमिली के मेंबर्स मिलकर एक HUF, हिंदू और डिवाइडेड फैमिली सेटअप कर सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के तहत ये एक सेपरेट एंटिटी है, तो हमारे को टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बचत होती है। हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी 6 फैमिलीज में HUF इज अलाउड, बट नॉट अलाउड इन मुस्लिम फैमिलीज। फैमिली अपने रिसोर्सेज को पूल कर लेती है, पैसा बढ़ जाता है, और फैमिली के लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपस में उनकी समझ मिलती है, इसलिए कोई आपस में चलने में दिक्कत भी नहीं आती है, कोई डिस्प्यूट्स भी होते हैं तो बहुत कम होते हैं, डिसीजन मेकिंग क्विकली होती है। जो HUF को हेड कर रहा होता है उसको हम कर्ता कहते हैं, और जब जो सीनियर मोस्ट है उसको हम कर्ता कहते हैं। यहाँ पे भी सक्सेशन पास ऑन हो जाती है जब एक कर्ता अपने बाकी को पार्टनर्स को अपने बाद जॉन से बिजनेस पास ऑन कर जाता है। या फिर आप पार्टनरशिप खोल सकते हैं बेटा, पार्टनरशिप में आपको एग्रीमेंट करना है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप खोल सकते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग इसका उद्देश्य रहता है। बिजनेस ऑब्जेक्ट इज क्वाइट वाइड। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब है एक पार्टनर की गलती के लिए दूसरा पार्टनर भी जिम्मेवार रहता है। लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और फेट एज गोइंग कंसर्न जो सी है वो लिमिटेड है। अगर पार्टनरशिप टूट जाएगी, कोई पार्टनर सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगी पार्टनरशिप, अगर कोई मेन पार्टनर नहीं रहता है, या लॉन्टेक हो जाता है, या फिर किसी कानून के दायरे में फंस जाता है।
एक नई तरीके की पार्टनरशिप आई है जिसका नाम है LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। यहाँ पे पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या रहती है बेटा? लिमिटेड रहती है। इसको इनकॉर्पोरेट करना ज़रूरी होता है, ये एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसकी परपेचुअल सक्सेशन है, पार्टनर्स में कम, न्यू पार्टनर्स में ज्वाइन। ऑर्डनरी पार्टनरशिप में देर इज नो परपेचुअल सक्सेशन, ये उससे डिफरेंट है। और लाइबिलिटी भी यहाँ पे लिमिटेड है, और नॉर्मल पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बेटा। ये एक हाइब्रिड फॉर्म है, मतलब इसमें पार्टनरशिप के गुण भी हैं और कंपनी के गुण भी। या फिर तो बेटा आप कंपनी खोल सकते हैं, कंपनी में भी आपके पास चॉइस है, पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 7 लोग, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में आप शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर्स क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर हो सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होना जरूरी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। So I have just pointed out main forms of business organizations with you. There is one innovative form of business organization called one person company. ये हाइब्रिड फॉर्म है सोल प्रोप्राइटरी और कंपनी की। हाइब्रिड फॉर्म पार्टनरशिप और कंपनी की है LLP, और हाइब्रिड फॉर्म सोल प्रोप्राइटर और कंपनी को हम क्या कहते हैं? वन पर्सन कंपनी। यहाँ पे एक जना ही कंपनी खोल सकता है, लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। इसमें आपको नॉमिनी रखना पड़ेगा। यहाँ पे परपेचुअल सक्सेशन नहीं होगी क्योंकि 2 लोग ही नहीं है, एक ही जना है। कम से कम एक डायरेक्टर के साथ आप काम खोल सकते हैं। इसमें कोई पेड अप कैपिटल की मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। इनको एनुअल जनरल मीटिंग्स होल्ड नहीं करनी पड़ती हैं, इनको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं बनानी पड़ती है, और ये अपने डायरेक्टर्स को ज़्यादा रेम्यूनरेशन भी क्या कर सकते हैं? पे कर सकते हैं। So these are my different forms of business organization. This was little discussion about chapter number 1. Yes, students. Do you have to ask anything from chapter 1? Is there any query from chapter 1? Shall I move to chapter 2 now? Okay. Chapter 2 deals with business environment. Business environment का मतलब हमें समझ में आना चाहिए। जैसे ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इनकी एक तयशुदा मात्रा चाहिए, वैसे बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए भी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत है। बिजनेस तभी सर्वाइव करता है जब उसमें एबिलिटी टू प्रॉस्पर है एंड एबिलिटी टू चेंज विद द चेंजिंग टाइम्स है। आए दिन हम सुनते हैं कई नए बिजनेसेस खुल रहे हैं, कई पुराने बिजनेसेस बंद हो रहे हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं रहता, कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। ये डायनेमिक इन नेचर होता है, लगातार चेंज होता है। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, बहुत आसानी से समझ में भी नहीं आता। फ्यूचर में क्या होगा पक्का नहीं है, इसलिए अनसर्टन है। मल्टीफिसेटेड, एक साथ कई सारे चेंज हो रहे होते हैं, इसलिए मल्टीफिसेटेड कहते हैं। और बिजनेस के ऊपर इसका फार रीचिंग इम्पैक्ट है एंड इट इज रिलेटिव इन नेचर। वी कैन ड्रॉ रीजन एंड कॉज थ्योरी ओवर हियर। बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने का हमारा जो सबसे बड़ा पर्पस है वो यही है कि हम ये देख सके कि हमारे बिजनेस में आने वाले समय में कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और हमारे को कौन सी थ्रेट्स फेस करनी पड़ सकती है। नाउ दिस इज बेसिकली व्हेन वी स्टडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वी विल कम टू नो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज एंड द थ्रेट्स। बिजनेस एनवायरनमेंट से फ्यूचर में ग्रोथ कैसे होगी ये समझ में आता है। बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी कॉन्टिन्यूअस लर्निंग है। बिजनेस एनवायरनमेंट स्टडी करने से कंपनी की इमेज बिल्ड होती है, कंपटीशन को मीट करने में फ़ायदा होता है, और हमें ये भी पता चलता है कि हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कहाँ कहाँ पर है। सो इफ वी जस्ट डिस्कस व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वी कैन कैटेगराइज इट एज इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट बोले तो जो
एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ या वीकनेस प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, वीकनेस कॉज करता है, उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज इंटरनल एनवायरनमेंट। और इंटरनल एनवायरनमेंट के फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा? वैल्यू सिस्टम्स, कंपनी की वैल्यू सिस्टम्स क्या है, अपने कस्टमर्स के प्रति, गवर्नमेंट के प्रति क्या वैल्यू सिस्टम्स फॉलो करते हैं, क्या वो चोरी करते हैं या वो फेयरली चलते हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, कंपनी के मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर, मतलब उनकी हायरार्की क्या है, उनकी टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट किन लोगों द्वारा मैंड है, कॉरपोरेट कल्चर, स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग क्या ऑटोक्रेटिक है या पार्टिसिपेटिव है, किस तरीके के ह्यूमन रिसोर्सेज, पढ़े लिखे या अनपढ़ लोग उन्होंने हायर करे हुए हैं, लेबर यूनियंस क्या रोल प्ले करती हैं बिजनेस में, बिजनेस के पास क्या फिजिकल रिसोर्सेज हैं, क्या टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज हैं, दिस ऑल मेक इंटरनल एनवायरनमेंट एंड इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। Then the second component of business environment is external environment. Now, what do you mean by external environment? External environment वो होता है which consists opportunities or pose threats to the business. Business environment का external environment can further be classified as micro and macro. Micro environment में क्या क्या चीजें आ जाएंगी बेटा? Micro environment will comprise of competitors. यदि बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स कौन हैं, जैसे सोनी का कॉम्पिटिटर एलजी है, सैमसंग है टीवीज में, ओ जर्नल एसी का कॉम्पिटिटर मित्सुबिशी है या एलजी एसी है, दिस इज कॉल्ड कंपटीशन। कस्टमर्स, हमारे बिजनेस के कस्टमर्स कौन, हम उनको कैसे रीच आउट करें, आज की डेट में आप देखे हो कि व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से भी हम परसुएसिव सेलिंग करते हैं। कस्टमर ग्रुप क्या है, हमारे सामान के सप्लायर्स कौन हैं, पब्लिक का मेरे बिजनेस के प्रति क्या व्यू है, पब्लिक मेरे बिजनेस को किस तरीके से, किस नज़रिए से देखती है, क्या मैं अपने सामान से पब्लिक एट लार्ज को सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज कौन है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन हैं, मेरे स्टॉकिस्ट कौन हैं, मेरे रिटेलर्स कौन हैं, दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट यू कैन से चेन मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। आज की डेट में ऑनलाइन सेल्स के थ्रू हम डायरेक्टली कस्टमर को भी रीच कर रहे हैं। और सेकेंड सेगमेंट ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज मैक्रो एनवायरनमेंट। अ मैक्रो एनवायरनमेंट इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Macro environment consists of economic environment and you can also say non-economic environment. Economic environment is a bigger segment. Economic environment में हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, हम ये स्टडी करते हैं कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी, ये क्या है और हमारे बिजनेस को ये क्या फ़ायदा पहुंचा रही हैं या नुकसान पहुंचा रही हैं, हमारे कंट्री में इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, क्या हम सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, क्या चीज़ फॉलो करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के सेगमेंट्स में क्या आ जाएगा, किसी कंट्री का, किसी एरिया का सोशल एनवायरनमेंट क्या है। सोशल एनवायरनमेंट बोले तो कि वहाँ पर लोगों की बिलीव्स क्या हैं, लोगों की वैल्यू सिस्टम्स क्या हैं, लोगों की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर फॉलो करती हैं बेटा। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, क्या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है या लगातार इलेक्शंस हो रहे हैं, इनस्टेबिलिटी है। लीगल एनवायरनमेंट किसी कंट्री का क्या है, क्या हर चीज़ के लिए प्रॉपर लॉ बने हुए हैं और लॉज लगातार अपडेट हो रहे हैं। आपको याद हो मैंने क्लास में एग्जांपल दिया था, आज की डेट में हम सब कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं। शुरू शुरू में आईटी का इतना यूज़ नहीं था, देयर वाज नो लॉ, मगर अब आज की डेट में आईटी का इतना यूज़ है और इसके मिस यूज से बचने के लिए गवर्नमेंट ने क्या फ्रेम कर दिया, आईटी एक्ट। सो नए समय के साथ लॉज में परिवर्तन होना, नए लॉज का आना, रिडंडेंट लॉज का चेंज होना, जैसे कंपनीज एक्ट में कितनी सारी अमेंडमेंट्स आ गई, ये किस में फॉल करेगा, लीगल एनवायरनमेंट में।
क्या किसी कंट्री की टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेडेशन हो रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। कई जगह पे लेफ्ट हैंड कार्स हैं ड्रिवन, कई जगह पे राइट हैंड ड्रिवन कार्स हैं, कई जगह पे 110 वॉट के स्विचेस होते हैं, कई जगह पे 220 वॉट्स के होते हैं। टेक्नोलॉजी वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। किसी कंट्री का डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट क्या है, क्या वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दी ज़्यादा होती है, क्या वहाँ पे डेजर्ट्स हैं, क्या वहाँ पे प्लेन्स हैं, क्या वहाँ पे हिल्स हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं वहाँ पे किस तरीके का बिजनेस फ्लरिश कर सकता है। देन नेक्स्ट सेगमेंट इज नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब है हाँ कोई किसी कंट्री का जियोग्राफिकल पोजीशनिंग कैसे है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे, जैसे द कंट्रीज वेयर देयर इज लॉट ऑफ कोल्ड, the goods consumed are different from the countries where there is lot of, you can say, warm countries में जो कंज्यूम होगा वहाँ की खपत कोल्ड कंट्रीज की खपत से डिफरेंट है, क्लोथिंग ही डिफरेंट है, फूड स्टाइल्स डिफरेंट होंगे। सो बिजनेस कौन सा फ्लरिश करेगा ये हमारे को ध्यान में रखना पड़ता है वहाँ के डेमोग्राफिक फीचर्स के साथ, नेशनल एनवायरनमेंट्स के साथ। बिजनेस एनवायरनमेंट को हम स्टडी कर रहे हैं ताकि हम बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करके उसका एनालिसिस करके हमारे बिजनेस के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, स्ट्रैटेजी बना सकें। बिजनेस के रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, उन रिसोर्सेज को कैसे आपने स्पेंड करना है, आपने कैसे यूज़ करना है उन रिसोर्सेज को, हम ये सीख सकें। सो एनवायरनमेंट एनालिसिस करने के लिए जो टूल्स हम यूज़ करते हैं, वन इज पेस्टल। पेस्टल मीन्स पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एक तरह से सारे एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स की स्टडी करना इस पेस्टल एनालिसिस। कौन से फैक्टर्स मेरे बिजनेस के लिए फायदेमंद हैं, कौन से फैक्टर से मेरे बिजनेस को नुकसान हो सकता है, इसका मैं पहले से अनुमान लगाता हूं ताकि मैं अपने रिसोर्सेज को उसके हिसाब से यूज कर सकूं। या फिर मेरे पास क्या है, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स। हमारे कंट्री में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये रिफॉर्म्स, इनकी वजह से कई नए बिजनेसेस सेटअप हुए हैं, पुराने बिजनेसेस बंद हुए हैं। किन बिजनेसेस को स्ट्रेंथ मिली है, किन को वीकनेस मिली है, वी आर एबल टू स्टडी थ्रू स्वॉट एनालिसिस। Well, this is little discussion about our chapter number 2, business environment. Yes, please. Do you have to ask anything from this chapter? Broadly speaking, what is there in this chapter? Internal environment, external environment, which comprises of micro and macro environment, and how they affect my business. Some things will affect my business in a positive manner, some things will affect my business in a negative manner. The things which are positive, I should use my strengths to encash my opportunities and also use my resources to avert the threats. This is how your business succeeds. So it is a little discussion of chapter number 2. Then we move to chapter 3. That's what we will be doing in the last. We will be discussing about top companies. Let's look at chapter 4. This chapter deals with government policies for business growth. Now, in every country there is a government which tries to formulate policies through which they can make their business grow, make country prosper. And this is not a new thing. This has happened in India since old ages. If we look at the history sketch,
There were some good rulers like Chandragupta Maurya. There were some not so good rulers like Alauddin Khilji. Then land reforms propelled by Akbar. That was a good move. So it depends upon the government to make good policies or bad policies. Policy means what government chooses to do, and it also means what government chooses not to do. Government tries to bring fair level or equal opportunities to all so that everyone has an equal right and opportunity to grow. So to maintain this balance, the government provides various policies, which in turn will help business to grow. Government should ensure that not only the forward areas to grow more, but government has to ensure that even the backward areas grow and match shoulder to shoulder with forward areas. Not only affluent classes to grow, even backward classes, those who are resource deprived, should also be provided opportunity to survive and grow. So level playing field is to be provided by the government through its public policies. पॉलिसीज आर ऑलवेज गोल ओरिएंटेड, इनका कुछ उद्देश्य होता है, कुछ अचीव करना, से जीडीपी बढ़ाना, पर कैपिटा इनकम बढ़ाना, ऐसे कुछ उद्देश्य हो सकते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज के। टैक्सेशन की कलेक्शन को बढ़ाना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, इंपोर्ट्स को, उन चीज़ों के इंपोर्ट्स को बढ़ाना जिसको यूज़ करके हम और एक्सपोर्ट्स कर सकें, कुछ उद्देश्य हो सकते हैं। जैसे जन धन योजना है, उसका उद्देश्य है कि लोगों के क्या खुलें, खाते खुलें। अब देखिए इस बारी क्या हुआ कि लोगों के जब खाते खुलना शुरू हुए, लेडीज़ इनके खाते नहीं खुला करते थे नॉर्मली, मगर इस योजना के तहत खुलने शुरू हुए और इनके अकाउंट में डायरेक्टली पैसा आना शुरू हो गया। So one segment of the population which was deprived started to get some economic muscle, and it has started to reflect in India's economic growth. When every segment of population will have some finance, they will be able to use it properly, and obviously there will be a wholesome growth. पब्लिक पॉलिसी सरकार के मिले जुले एक्शंस का और सोच का नतीजा होती है, और आज की डेट में हम कह ही सकते हैं कि पब्लिक पॉलिसी बनाना एक पॉजिटिव बात है। जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसीज बनी, मेक इन इंडिया की पॉलिसी बनी, आत्मनिर्भर भारत की पॉलिसी बनी, 100 स्मार्ट सिटीज़ की पॉलिसी बनी, जनधन योजना की पॉलिसी बनी, फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी बनी, उज्ज्वला स्कीम्स बनी। ये सारी स्कीम्स क्या हैं? पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, ताकि जो बेनिफिट्स है वो मासेस तक पहुंच सके। पॉलिसीज बनाने के लिए हमारे को प्रॉपर लॉ मेकिंग प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। पोस्ट इंडिपेंडेंट पब्लिक पॉलिसीज, जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय हमारी ज़्यादा सोच क्या थी? सोशलिज्म की तरफ थी, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा मेन काम था, इंडस्ट्रीज़ में हम पिछड़े हुए थे, टर्शरी सेक्टर में हम पिछड़े हुए थे, हम प्रभावित थे सोवियत यूनियन के कम्युनिस्ट मॉडल से। हालांकि इंडिया ने चुना क्या? मिक्स पाथ अप्रोच। मगर ये चलते चलते 1990 तक इंडियन इकॉनमी काफ़ी डाउन आ गई थी, और हमारे को रिफॉर्म्स की ज़रूरत महसूस हुई। और रिफॉर्म्स की ज़रूरत इसलिए भी थी कि भारत के ऊपर उधार बढ़ गया था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स अच्छे से काम नहीं कर रही थी, इन्फ्लेशन की दर बहुत ज़्यादा थी, फॉरेन करेंसी का रिजर्व बहुत कम रह गया था, प्रोडक्शन कम थी, महंगाई ज़्यादा थी, रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। सोवियत यूनियन जिसको हम देख देख कर बड़े हुए, वह टूट चुका था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए 1991 से, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी शॉर्ट फॉर्म में इनको कहा जाता है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या है बेटा? लेट अस डिस्कस देम इन ब्रीफ ओवर हियर नाउ। सो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे क्या? जैसे कि लिबरलाइजेशन, पिछली सरकार द्वारा बनाए गए कठिन नियमों को क्या करना? सरल बनाना, दैट इज लिबरलाइजेशन। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्योंकि कंट्री ने प्रॉमिस करे थे, इसीलिए कंट्री को आईएमएफ से लोन भी मिला और इकोनॉमी को मच नीडेड बूस्ट भी मिली।
पुरानी सरकारों द्वारा बनाए गए कस्टम टैरिफ्स को रिड्यूस करना, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। तो सरकार ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म्स लाई, फाइनेंशियल सेक्टर में, एक्सटर्नल सेक्टर में, फिजिकल पॉलिसी में रिफॉर्म्स लाई। देखते हैं मेन रिफॉर्म्स क्या थे। जैसे लाइसेंस की रिक्वायरमेंट को एबॉलिश कर दिया गया। पहले कुछ काम थे केवल जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस ही कर सकती थी, उनको भी रिजर्वेशन को ख़त्म किया गया। कई प्रोजेक्ट्स की क्लियरेंस नहीं मिलती थी, इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स खरीदना मुश्किल था, उसको सरल बनाया गया। और सबसे बड़ा रिफॉर्म, हमारे कंट्री में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउ करी गई। बाहर वालों का निवेश, बाहर वालों का पैसा, बाहर वालों की टेक्नोलॉजी हमारे कंट्री में है क्या, लेबरर्स सामान बनाए, वो तनख्वाह उन्हें मिले, काम करने के पैसे उनको मिले, और बाहर से पैसा आए और टेक्नोलॉजी आए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स वर अलाउड इन इंडिया। MRTP एक्ट को ख़त्म कर दिया गया, फेरा एक्ट को ख़त्म कर दिया गया। फाइनेंशियल सेक्टर में भी, बैंकिंग में भी कई रिफॉर्म्स आए। CRR SLR रेशियोज को कम कर दिया गया, बैंक रेट को घटाया गया, स्पेशल रिकवरी ट्रिब्यूनल बनाए गए ताकि जल्दी उगाई हो सके। नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर करे गए, जो एसेट सिर्फ ऐसे हैं जिसपे एक्रूड इनकम बुक हो रही है मगर कभी कुछ नहीं हो रहा है, उन चीज़ों को राइट ऑफ किया सरकार ने। और मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की भी गाइडलाइंस निकाली। एक्सटर्नल सेक्टर रिफॉर्म्स में हमारा रुपी जो बहुत वीक हो रहा था उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश करी गई। इनिशियली उसको डीवैल्यू किया गया, उसमें कन्वर्टेबिलिटी फैक्टर्स इनबिल्ट करे गए। FDI के नॉर्म्स को लिबरलाइज किया गया। डिफेंस के क्षेत्र में 26%, फार्मा के क्षेत्र में 100%, बैंकिंग में 74%, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग परसेंटेज FDI को क्या किया गया बेटा, अलाउ। इंपोर्ट्स को सरल बनाने के लिए OGL SIL नेगेटिव लिस्ट में क्लासिफाई किया गया। कस्टम ड्यूटीज़ को रिड्यूस किया गया। और इन सब का फ़ायदा ये हुआ कि मेरी फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व्स थे वो $1 बिलियन रह गए थे घटकर, जो आज की डेट में बेटा लगभग $600 बिलियन तक पहुंच चुके हैं। फिस्कल पॉलिसी में टैक्स रिफॉर्म्स भी आए। टैक्स रिफॉर्म्स, सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म तो आज की डेट में आप देखते हैं GST आ गया, जिसकी वजह से सरकार की आमदन कई गुना बढ़ गई। और आने वाले समय में इनकम टैक्स को भी DTC से रिप्लेस करने, डायरेक्ट टैक्स कोड से रिप्लेस करने की बातचीत चल रही है। यहाँ पे हमारे ऑनलाइन रिटर्न भरना पॉसिबल हो गया, ऑनलाइन टैक्स भरना पॉसिबल हो गया, TDS सर्टिफिकेट्स ऑनलाइन हो गए। ये सारे रिफॉर्म्स जॉन से हमारे टैक्सेशन के फील्ड में हुए। इंडिया में प्राइवेटाइजेशन के ऊपर भी बहुत काम हुआ। प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है जो कंपनियां पहले सरकारी थीं उन कंपनीज ने अपने शेयर प्राइवेट लोगों को बेच दिए, प्राइवेट पार्टिसिपेशन आ गई। इससे अकाउंटेबिलिटी आती है, मालिक कोई बनता है तो वो पूछता है कि मेरी कंपनी में क्या हो रहा है। जब तक सरकार मालिक है लोगों को लगता है कि चलो काम करा ना करा चल जाता है, मगर जब प्राइवेटाइजेशन आ जाती है, प्राइवेट लोगों के हाथ में ऑनरशिप आ जाती है, तो अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है। प्राइवेटाइजेशन थ्रू डेलीगेशन, डिवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, कई मोड्स के थ्रू प्राइवेटाइजेशन क्या है, पॉसिबल है। इससे हायर एफिशिएंसी आती है और पॉलिटिकल प्रेशर्स भी कंपनी के ऊपर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। प्राइवेटाइजेशन से मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है, गुड्स की क्वालिटी बढ़ती है, अवेलेबिलिटी बढ़ती है। पहले हमारे यहाँ पे फ़ोन नहीं मिलता था, स्कूटर नहीं मिलता था, गैस का कनेक्शन नहीं मिलता था, मोबाइल तो था ही नहीं। जैसी प्राइवेटाइजेशन आई, ये सारी सामान ऑन डिमांड इमीडिएटली आपको क्या है, अवेलेबल हो गए। मैं कई सारे मैंने एग्जांपल्स भी लिखे हैं। VSNL को टाटा को बेच दिया गया था। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो सरकारी कंपनी थी उसको भी स्टरलाइट ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को बेच दिया गया था। एंड इस तरीके से भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड को भी स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ने टेक ओवर कर लिया था। ये सब प्राइवेटाइजेशन के एग्जाम्पल्स हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट को सेटअप किया गया है, जो ये आइडेंटिफाई करता है किस कंपनी को प्राइवेटाइज करना है, डिसइन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट रिफॉर्म इज ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट रिफॉर्म इज ग्लोबलाइजेशन। जब हम बात करते हैं बेटा ग्लोबलाइजेशन की, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, जोड़ना है, मिलाना है।
हमारे को WTO का हमारा कंट्री अब मेंबर है, तो उसके बनाए हुए नियम कायदे कानून उन सबको फॉलो भी करना है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से देखते हैं हम लोग, हमारे कंट्री में पिज़्ज़ा हट, हमारे कंट्री में डोमिनोज, हमारे कंट्री में कोस्टा कॉफ़ी, हमारे कंट्री में पिज़्ज़ा हट, ये सब रिबॉक रिबेन, ये सब के आउटलेट्स खुलने शुरू हो गए। पहले ये पॉसिबल नहीं था, बट नाउ इट इज़ पॉसिबल। ग्लोबलाइजेशन के लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं, कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी, रुपी की डिवैल्यूएशन, और कई एग्रीमेंट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट साइन किए हैं सरकार ने। ड्यूल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी कि डॉलर का खरीदने और बेचने का रेट एक साथ तय होगा। ADRs एंड GDRs, यानी कि इंडियन कंपनीज बाहर जाके शेयर्स बेच सकती हैं, और ऑथराइज डीलर्स भी अब सिर्फ कैश नहीं कन्वर्ट करेंगे फॉरेन करेंसी को, इंडियन इंडियन को फॉरेन करेंसी के अलावा क्रेडिट कार्ड्स भी क्या कर सकते हैं बेटा, इशू कर सकते हैं। इंपोर्ट्स को सरल बनाना, नेगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट्स में से चीज़ों को घटाना, कस्टम ड्यूटीज़ को कम करना, WTO का मेंबर बन जाना, इंडियन इकोनॉमी FDI FII फॉरेन कैपिटल के लिए खुल जाना, ये सब निशानियां हैं किसकी, ग्लोबलाइजेशन की। और हमारी इकोनॉमी के ऊपर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स दिखने को मिले हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के। हमारे कंट्री में कई कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग हुई हैं, कई 2 कंपनीज जुड़ी हैं, 2 कंपनीज टूटी हैं, जॉइंट वेंचर्स आए हैं। इंश्योरेंस के क्षेत्र में तो सारे ही जॉइंट वेंचर्स आ गए हैं, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हुई है। कंपनीज, इंडियन कंपनीज बहुत बड़ी हो गई हैं, ग्लोबल हो गई हैं, वर्ल्ड की कंपनीज को टेक ओवर कर रही हैं। टाटा ICICI ने वर्ल्ड कंपनीज को टेक ओवर करके ये दिखाया अभी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर जिस पे एम्फेसिस नहीं होता था, आज की डेट में एम्फेसिस है। BPO और KPO सर्विसेज को बढ़ावा मिला। Well, this was little discussion about chapter number which dealt with गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी, गवर्नमेंट की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये सब तरीके से बिजनेस को बढ़ावा देते हैं, जिसके बारे में डिस्कशन थी चैप्टर नंबर 4 में। देन यू हैव चैप्टर नंबर 5. The next chapter that is lined up is chapter number 5. Yes, please, anything that you have to ask from chapter number 4? Okay, so I'm moving to chapter number 5. Chapter number 5, government as business facilitator. Government plays various roles. Policy making is one role, and facilitating business through setting up government agencies, government lending agencies, government business monitoring agencies, government regulators is another role. That role we will be studying in this chapter, chapter number 5. So formulating friendly business policies is okay, but creating an institutional apparatus for implementing this policies is also very important. So सरकार कई नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस जो सीधे सीधे पैसा नहीं देते हैं बिजनेस में, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस की स्थापना करती है, ताकि बिजनेस को क्या मिल सके, प्रोत्साहन मिल सके, बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। या फिर कुछ फंडिंग इंस्टीट्यूशंस को क्या करती है, गठित करती है। नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशंस में सबसे ऊपर नाम आता है किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, RBI। नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जानते ही हैं हम लोग, ये इज अ गवर्नमेंट्स बैंक, बैंकर्स का बैंक है। CRR SLR रेशियो क्या होगा, रेपो रेट क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, बैंक रेट क्या होगा, क्या मार्जिन होंगे फॉर गिविंग लोन्स अगेंस्ट कलेक्ट्रल, ये सब डिसीजंस लेना किसका काम रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखना, इन्फ्लेशन ज़्यादा ना हो जाए, डिफ्लेशन से बचा रहे नेशन, ये काम किसका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। अगर कंट्री की इकोनॉमिक हालात सुचारू रूप से चलेंगे तो ऑब्वियसली बिजनेस को क्या मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। नेक्स्ट इज सेबी।
सेबी इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमने ये देखा कि अब इंडिया में देयर इज अ मूवमेंट, type of form of business organization is changing very very fast. From proprietorship we are moving towards joint stock companies. Company form, corporate form of business organization is gathering a lot of interest because they can raise money through public issues, but there are cheating incidences also, there are frauds also. To safeguard public from frauds, to ensure complete transparency and full information, there is a regulator that has been set up by government. The name of the regulator is SEBI. SEBI means Securities Exchange Board of India. 1992 30th June se it has come into operation, and it has already replaced Capital Issues Controllers Act, headquartered at Mumbai and has branches all across India. If we look at the functions and responsibilities, so we will see to protect the interest of prospective investors and promote development of regulated markets is one of the important responsibilities of SEBI. SEBI has all functions built into one body. It has quasi-legislative function, whereby it can formulate legislative drafts. It can make a law. It has a quasi-judicial function, that it can do investigation and pass rulings and pass orders. It has quasi-executive, where it can enforce certain actions on certain companies. सेबी के पास कई सारी पावर्स हैं। स्टॉक एक्सचेंजेस के बायलॉज को अप्रूव करना, स्टॉक एक्सचेंजेस को ये कहना अपने बायलॉज में चेंज करें, स्टॉक एक्सचेंजेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को स्टडी कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है, सर्टन कंपनीज को कह सकती है आपको लिस्ट करना ज़रूरी है, या उनको शट डाउन भी कर सकती है। सो इसका रूल क्या है कि फेयर हो सब चीज़ें, ट्रांसपेरेंट हो चीज़ें, लोग बेवकूफ़ ना बन पाए, इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना इज द रूल ऑफ सेबी। देन यू हैव another government institution by the name of Competition Commission of India, CCI। देखिए कंपटीशन तो हर जगह पर है, एनिमल किंगडम में भी है, ह्यूमंस में भी है, बिजनेसेस में भी है। और ये जो कंपटीशन होता है ना बेटा, डायरेक्ट हो सकता है। से आप सेक्टर 17 जाते हैं या कहीं पे भी घूमने जाते हैं, आप देखते हैं साथ में ही बर्गर किंग है, साथ में और साथ में ही उसके सेम मैकडोनल्ड्स है, दोनों ही बर्गर्स बेच रहे। दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कंपटीशन। या तो आप बर्गर किंग में घुसेंगे, आप मैकडोनल्ड में, यू विल नॉट गो इनटू बोथ साइमल्टेनियसली एट वन टाइम। या आप डोमिनोज में जाएंगे या पिज्जा हट में जाएंगे, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट कंपटीशन। और एक इनडायरेक्ट कंपटीशन होता है बेटा, आप एक फाइन डाइन रेस्टोरेंट में जाकर भी खाना खा सकते हैं, आप स्विगी फूड से घर पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप रेडी पे भी जाके खाना खा सकते हैं। सो ये आपस में मेल नहीं खाते, मगर अगर एक जगह खाना खा लिया फिर दूसरी जगह तो नहीं खाएंगे ना आप साइमल्टेनियसली। दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट कंपटीशन। ये कंपटीशन होना क्या बुरी बात है? आंसर इज नो। कंपटीशन तो होना ही चाहिए, जितना कंपटीशन होगा उतना ही कस्टमर का क्या होगा, भला। मगर कंपटीशन क्या होना चाहिए? फेयर होना चाहिए। कंपटीशन में कोई रिस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस नहीं होनी चाहिए, और कोई अगर बड़ा बन गया तो वो दूसरों को दबाए नहीं। कस्टमर को इन्फॉर्मेशन जो दे वो पूरी इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे। ये चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, इनकी शिकायत करनी है, इनमें अगर कोई रिलीफ लेना है, तो जो इंस्टीट्यूशन है उसका नाम है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो फ्रीडम ऑफ ट्रेड, आप क्या काम करेंगे? मार्केट में कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये सब काम किसका है? कंपटीशन कमीशन का है। इसी तरह से बेटा इंश्योरेंस के क्षेत्र में एक रेगुलेटर आया है, उसका का नाम क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI।
ये एक ऑटोनोमस एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री को रेगुलेट और डेवलप करती है इंडिया में। इंश्योरेंस एक ऐसा क्षेत्र है जिसकी ज़रूरत सबको है मगर प्राप्त बहुत कम लोगों के पास है। इंश्योरेंस की ज़रूरत सबको है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस, प्रॉफिट इंश्योरेंस, ताकि कोई भी अनफोर्सिन कंटिजेंसी को मीट करा जा सके, कोई हमारे को सपोर्ट करने के लिए हमारे बुरे वक्त में खड़ा हो। इंश्योरेंस की ज़रूरत सबको है मगर है नहीं लोगों के पास। और इंश्योरेंस की पॉलिसीज बहुत झूठ बोलकर बेची जाती हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ये चीज़ें ना हो, इंश्योरेंस सबके पास हो और सबको उनके रिस्क फैक्टर्स मालूम हो, उन्होंने फेयरली सोच के डिसीजंस लिए हों, कल को इंश्योरेंस क्लेम्स जब अराइज हों उनकी सेटलमेंट स्मूथ और टाइमली हो, उसमें कोई झंझट ना आए। ये सारी चीज़ों को इंश्योर करने के लिए प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस और पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस को एग्जिस्ट कर सके, आपस में कोई इनमें विचारों में मतभेद ना आए, इन चीज़ों को स्थापित करने के लिए गठित करी गई है ऑर्गेनाइजेशन। नाम है उसका इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके बाद बेटा हम बात कर सकते हैं कुछ फंडिंग इंस्टीट्यूशंस की जो कि हमारे इंडिया में बिजनेस को क्या देते हैं, फाइनेंस देते हैं, जिसमें आईएफसीआई बहुत प्रमुख है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो स्मॉल स्केल सेक्टर्स को फाइनेंस देता है, एग्जिम बैंक जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स को, ईओयूज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स या एफटीजेड्स में बने हुए फ्री ट्रेड जोन्स या एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में गठित यूनिट्स जिनका ज़्यादातर सामान एक्सपोर्ट होना है, उनको फाइनेंस देता है। उनको किससे मिलता है वो फाइनेंस? एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया से। तो ये फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस हैं बेटा। और आज की डेट में एक बड़ा नया एक्ट आ गया, एमएसएमई एक्ट, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज एक्ट, जो प्रोटेक्शन करता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में उधार देने वाले अथॉरिटी या एजेंसी या बैंक का नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ये मैंने कहा ना, फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है, किसी ना किसी तरीके से फाइनेंस देते हैं। बैकवर्ड सेक्शंस को फाइनेंस दे दिया, फाइनेंस एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया, ये चीजें इनमें क्या है, कॉमन। सो दिस इज आवर लिटिल डिस्कशन फॉर चैप्टर नंबर 5। Yes, please. So we now move to chapter number 6. Chapter number 6 deals with some common business terminologies which we use too often in our business use. There's some very simple terminologies. Accrued interest मतलब कितना इंटरेस्ट ड्यू हो गया है। एनुटीज का मतलब है अगर आप एक साथ थोड़ा सा पैसा जमा करा देंगे तो आपको कुछ इंटरवल्स के बाद कितना पैसा वापस मिलना शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउसेस बैंकिंग सिस्टम में यूज होते हैं ताकि चेक्स की क्लियरिंग हो सके, टाइम के ऊपर ऑटोमेटिकली हो सके। एटीएम मशीन्स हम यूज़ करते हैं पैसे को विड्रॉ करने के लिए, डिपॉजिट करने के लिए भी आज की डेट में यूज़ हो रही है। खाता खोलना है तो आपको बैंक में जाना पड़ेगा, खाता का नाम क्या होगा, बैंक अकाउंट, चाहे वो करंट अकाउंट है या सेविंग बैंक अकाउंट है। बैंक जो सा रेट डिसाइड किया हुआ है, आरबीआई कमर्शियल बैंक से जो चार्ज करती है उसको कहते हैं बैंक रेट। अगर किसी चेक का भुगतान ना हो सके तो हम कहते हैं बाउंस चेक। चेक एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि अगर हम काट के किसी को देते हैं तो वो एक समय के बाद उसका क्या होना चाहिए, पैसे का भुगतान होना चाहिए। डेबिट कार्ड हम आज की डेट में यूज़ करते हैं, एटीएम मशीन्स में जाकर पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स पे निकाल सकते हैं, कुछ और काम एफडी खोलना बंद करना ये भी पॉसिबल हो गया आजकल डेबिट कार्ड में, ये फीचर्स आ गए हैं। जो जना किसी के बारे में गारंटी देता है दैट इज कॉल्ड गारंटर। इंटरनेट बैंकिंग घर बैठे हम यूज़र आईडी भरकर, पासवर्ड भरकर इंटरनेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग का क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं।
और कई सारे बैंकिंग फंक्शंस हम घर बैठे परफॉर्म कर सकते हैं, 24/7 परफॉर्म कर सकते हैं। लेटर ऑफ क्रेडिट एक ऐसा लेटर जो हमारे को अलाउ करता है कि हम उधार पे सामान खरीद लें। हमारा बैंक हमें इशू करता है, अगर हम डिफॉल्ट करेंगे तो हमारा बैंक उसे पेमेंट कर देगा और हमसे रिकवर करेगा। मोर्टगेज का मतलब किसी चीज़ को गिरवी रखना। ओवरड्राफ्ट अपनी लिमिट से ज़्यादा पैसे को क्या कर लेना, विड्रॉ कर लेना। रेपो रेट का मतलब है जिस रेट के ऊपर कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बोरो करते हैं। रिवर्स रेपो रेट मतलब जब कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा ज़्यादा है और आरबीआई पे जमा करेंगे जो रेट मिलेगा दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट, जो कि रेपो रेट से हमेशा क्या होता है, कम होता है। किसी पर्टिकुलर के लिए पैसा जमा किया गया टाइम के लिए उसको कहते हैं टाइम डिपॉजिट। ज़्यादा बड़ी ट्रांजेक्शन्स करने वाले बैंकिंग सिस्टम को हम कहते हैं होलसेल बैंकिंग। अगर किसी अकाउंट को ज़ीरो बैलेंस के साथ खोल दिया जाए, जैसे जनधन योजना में खोला जा रहा है, उसको हम कहते हैं ज़ीरो बैलेंस अकाउंट। फाइनेंस, कमोडिटी और स्टॉक मार्केट्स में यूज़ होने वाली कॉमन टेक्नोलॉजीज। एजेंट जिसके जरिए हम शेयर्स खरीदते बेचते हैं। एसेट्स का मतलब हम समझते हैं वो करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स कुछ भी हो सकती हैं। बजट का मतलब है कि हमारे को बताया गया कि इतने रुपए में आपको कोई पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करना है, उससे कम ज़्यादा होगा, वेरिएंस आएगा तो एनालिसिस करना पड़ेगा। जिस दिन स्टॉक मार्केट खुली होती है उसको कहते हैं बिजनेस डे। कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, शेयर्स को खरीदना है तो क्या खरीदे रखना है, बेचना है तो क्या बेचे रखना है। दीज आर द ऑप्शंस दैट वी कैन एक्सरसाइज। Debentures are acknowledgement of debt owed. Depreciation is method where you are charging cost of an asset over a period of time. डेरिवेटिव्स का मतलब होता है कोई ऐसी एसेट जिनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं है मगर किसी और की वैल्यू से डिराइव है, जैसे गोल्ड बॉन्ड्स। वो सस्ते होंगे महंगे होंगे डिपेंड करेगा गोल्ड का रेट कितना फ्लक्चुएट कर रहा है बेटा। डिविडेंड जो कंपनीज ने प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसमें से जो हिस्सा बांटा है उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज डिविडेंड। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब हमें मालूम है, इसको आप क्या कह सकते हैं, कैश, डीड, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, सब इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। गवर्नमेंट के बॉन्ड्स मतलब गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को हम ये कहते हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स। स्टॉक मार्केट एक्सचेंज का सेंसेक्स, निफ्टी, ये क्या होते हैं, उनके इंडेक्स होते हैं जो बताते हैं स्टॉक मार्केट्स अप जा रही हैं डाउन। जैसे आजकल अप जा रही हैं, 60,000 से बढ़कर बॉम्बे स्टॉक इंडेक्स जो था 70,000 हो गया। जब कंपनी कोई पहली बारी शेयर्स इशू करती है उसको कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब आप कहते हो कि इतने रेट में ही शेयर खरीदना है, अगर आज की डेट में इतना रेट लगा तो शेयर खरीद दिया जाए, नहीं तो नहीं, इसको कहते हैं लिमिट ऑर्डर। अगर हम कंपनी के सारे शेयर्स को बेचते हैं, जितना पैसा आएगा मल्टीप्लाई कर दें पर शेयर वाले पैसे से, तो उसको कहते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। कभी भी हम अपना पैसा सिर्फ एक कंपनी में नहीं इन्वेस्ट करते, वैरायटी ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि अगर एक कंपनी डूब भी गई तो दूसरी कंपनी के शेयर का प्राइस अप होगा तो उससे काउंटरिंग इफेक्ट हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो मेकिंग। जो हमने इन्वेस्ट किया है पैसा उस पर कितनी रिटर्न आ रही है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। शेयर्स को, सर्टिफिकेट्स को आप क्या कह सकते हैं, सिक्योरिटीज। मार्केट में यूज होने वाली टर्मिनोलॉजीज हैं एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि एक तरह से प्रमोशन करते हैं गुड्स की, आइडियाज़ की। सामान बेचने के बाद प्रोवाइड करी सर्विसेज को कहते हैं आफ्टर सेल सर्विस। जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का एक मेजर हिस्सा है जो हमारे सामान को बिकवाने में हेल्प करता है उसको कहते हैं एजेंट। और कई बारी हम क्या करते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं तो उसका बेंचमार्क देखते हैं, लोगों में उसकी पॉपुलैरिटी देखते हैं, 4.2, 4.8, इस तरह के बेंचमार्क्स आप देखते हैं रेस्टोरेंट्स के लिए, गुड्स के लिए। उससे हमें आइडिया हो जाता है कि सामान कितना अच्छा है। किसी पर्टिकुलर कंपनी के नाम को हम क्या कहते हैं, उसका ब्रांड कहते हैं। ब्रांड का कोई सिंबल हो सकता है, कोई लोगो हो सकता है, कोई डिज़ाइन हो सकता है जिससे वो आइडेंटिफाई होता है। लोग ब्रांड के प्रति लॉयल रहते हैं, उसी ब्रांड का सामान खरीदते हैं, ब्रांड के साथ रिकग्नाइज हो जाते हैं, ब्रांड की अवेयरनेस उनमें क्रिएट हो जाती है। बाइंग बिहेवियर भी हम देखना चाहते हैं लोगों का क्या है। अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो वो कैसा बिहेव करते हैं, घटती है तो कैसा बिहेव करते हैं। किसी और की टेरिटरी में जाकर सामान बेच देना मतलब क्रॉस सेलिंग। जो हमने सामान बेचा, क्या कस्टमर उससे सेटिस्फाई हुआ, दैट इज कॉल्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। देन वी हैव डायरेक्ट मार्केटिंग।
इसका मतलब होता है बेटा कि हमने सामान जौन सा है बिना किसी चेन सप्लाई के थ्रू डायरेक्टली कस्टमर को ऑनलाइन बेच दिया, तो इसमें विन विन सिचुएशन है। कस्टमर को डिस्काउंट मिल जाता है और मुझे मिडिल चेन को कोई कमीशन देनी नहीं पड़ती है। ई कॉमर्स विच इज़ बिकमिंग वेरी पॉपुलर, कि आज की डेट में हम घर बैठे सामान को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, आइडियाज़ को एक्सचेंज कर सकते हैं। एफएमसीजी का मतलब होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जैसे कि सोप्स, ऑयल, टूथपेस्ट, ये किसमें फॉल करते हैं? हमारे एफएमसीजी गुड्स में। अगर मुझे अपने सामान को सही से बिकवाना है तो अपने एम्प्लॉयज़ को अपने सामान के बारे में अच्छे से नॉलेज देनी है, क्योंकि वही मेरे फर्स्ट माउथ पीस है जो कि पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करेंगे। इसको कहते हैं इंटरनल मार्केटिंग। फिर मार्केट में कोई पोजीशन बनाना। पोजीशन बनाना कि देखो, मैं जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करता हूँ तो उसके किसी यूएसपी को बताता हूँ, जो लोगों को क्या करेगा, आकर्षित करेगा कि मेरे प्रोडक्ट में क्या डिफरेंट है औरों से। दैट इज कॉल्ड मार्केट पोजीशनिंग। मार्केट को सेगमेंट करना। देखिए, टैली अगर स्टूडेंट खरीदेगा उसके लिए रेट सस्ता होगा, उसमें फीचर्स भी कम होंगे। मगर कोई सीए खरीदेगा तो हो सकता है उसको भी सब्सिडाइज रेट मिले, मगर कोई इंडस्ट्री खरीदेगी तो उसको महंगा रेट मिलेगा। किसी चीज़ को बेचने के लिए परसुएड करना लोगों को, ये दिस इज कॉल्ड मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग का मतलब होता है कि हम पहले ना किसी स्मॉल सब सेक्शन को ही क्या करते हैं, उस पर ही अपने प्रोडक्ट को क्या करते हैं, चला कर देखते हैं, क्योंकि उसका सेगमेंट ही वही है। जैसे डाइट खोला, वो हेल्थ कॉन्शियस लोग ही क्या करेंगे, उसको फॉलो करेंगे। सेल्स को प्रमोट करना एग्जीबिशंस के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू, टेली मार्केटिंग के थ्रू, डोर टू डोर कैंपेन्स के थ्रू, अपने गुड्स के कुछ मेन पॉइंट्स बताना, मींस यूनिक सेलिंग प्रपोजिशंस। और नॉर्मल यूज़ होने वाली टेक्नोलॉजीज टर्मिनोलॉजीज में आती है बिजनेस को एक्वायर करना, टेक ओवर करना। कोई बिजनेस का दिवालिया पिट गया, मतलब बैंकरप्ट हो गया, हम कम से कम कितना बिजनेस करें कि सर्वाइव कर जाए, इसको कहते हैं बॉटम लाइन। इसके आगे तो हमें प्रॉफिट होंगे, मगर इससे नीचे जाएंगे तो हमारे को बिजनेस करने का कोई पर्पस नहीं रहेगा, फिर शट डाउन कर देना चाहिए बिजनेस। कई तरीके की कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड है, या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होते हैं। दे कैन बी सूड एंड सू इन देयर ओन नेम, दे कैरी सेपरेट लीगल एंटिटी। जब भी कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन बिजनेस करता है तो उसकी प्रॉपर कॉर्पोरेट गवर्नेंस होनी चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए, मीटिंग्स में क्या डिसीजंस लिए गए इनको रिकॉर्ड करना चाहिए, मिनट बुक्स बननी चाहिए, ताकि ट्रांसपेरेंटली हम देख सकें कि इन्होंने जो काम किया है वह सही किया है या नहीं किया। दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। बाहर का सामान हमारी कंट्री में आसानी से आ सके, हमारा सामान बाहर आसानी से जा सके, दैट इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। हमारे सामान की लोगों में कितनी, आप कह सकते हैं, इच्छा है खरीदने की, दैट इज द गुडविल। पिछली सरकार के बनाए हुए कठिन नए नियमों को सरल बनाना इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। हर कंपनी कोई अपनी मिशन या विजन स्टेटमेंट रखती है जिसको फॉलो करती है ताकि वो आगे बढ़ सके। प्रोपराइटर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब धीरे धीरे करके लगातार अपने बिजनेस को, अपने एनवायरनमेंट को ग्रो करना। ट्रिपल बॉटम लाइन क्या है कि मैं प्रॉफिट अर्न कर सकूं, जो हम लोगों को सर्व करते हैं, कम्युनिटीज़ को सर्व करते हैं, उनको तरफ केयर दिखा सकूं, और फिर ग्लोब और प्लैनेट अर्थ की तरफ, एनवायरनमेंट की तरफ भी केयर शो कर सकूं। टर्न अराउंड का मतलब है एक कंपनी जो कि लॉसेज में थी, उसने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए कि वो प्रॉफिट्स में आ गई। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इट वाज इनटू लॉसेज, but then they took certain good steps and they have now come into profits. Roadmap for company future is called a vision statement. Okay, now we are left with one chapter, that is chapter number 3. That is, we have to talk about some top Indian companies and top MNCs.
when we talk about top 10 Indian companies, I shared one latest write-up with you where I discussed about this. I am just repeating that. इंडिया की टॉप 10 कंपनीज कौन कौन सी हैं? ये टॉप 10 कंपनीज हमने किस आधार पर तय करी? पहली बात तो आधार क्या है? आधार इज मार्केट वैल्यूएशन। मार्केट वैल्यूएशन बोले तो जितने कंपनी ने शेयर्स पब्लिक में इशू किए हुए हैं उसको उसकी मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यूएशन। इस आधार पर इंडिया की सबसे नंबर 1 कंपनी है, उसका नाम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री। किस क्षेत्र में ये काम करती है? ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इसका मेन क्षेत्र है, मगर आज की डेट में आप देख रहे हैं ये कॉन्ग्लोमरेट बन गई है। कॉन्ग्लोमरेट मतलब एक से ज़्यादा बिजनेस साइमल्टेनियसली रन करना। रिलायंस आपको हर क्षेत्र में मिलती है। रिलायंस जियो है, रिलायंस एजियो है, रिलायंस ट्रेंड्स है, रिलायंस ज्वेल्स है। सो यू फाइंड रिलायंस ऑलमोस्ट प्रेजेंट एवरीवेयर। एफएमसीजी गुड्स से लेकर इलेक्ट्रॉनिक, रिलायंस डिजिटल, रिलायंस फ्रेश के ऊपर आप देख रहे हैं ग्रॉसरी बिक रही है। सो रिलायंस इंडस्ट्री इज नाउ अ कॉन्ग्लोमरेट एंड इट इज इंडियाज नंबर 1 कंपनी। सेकेंड नंबर के ऊपर आती है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इट इज एन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी। सॉफ्टवेयर्स बनाना इसका काम है। मेजर काम आज की डेट में टीसीएस जो कर रही है वो कई बड़ी कंपनीज के सॉफ्टवेयर्स बना रही है और उनको मैनेज कर रही है। इंडिया में भी 4G प्रोजेक्ट के लॉन्च में टीसीएस इज प्लेइंग अ बिग रोल। तीसरे नंबर के ऊपर आता है एचडीएफसी बैंक। बहुत तेजी से ग्रो करने वाला बैंक एचडीएफसी बैंक। आईसीसीआई बैंक को पछाड़कर आगे निकलने वाला बैंक एचडीएफसी बैंक। चौथे नंबर पे जो कंपनी आती है उसका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। बैंकिंग के क्षेत्र में एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का बहुत नाम है। एचडीएफसी इंडिया का नंबर 1 बैंक है, वर्ल्ड का नंबर 7 बैंक। पांचवें नंबर के ऊपर जो इंडियन कंपनी आती है दैट इज हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। कंज्यूमर गुड्स, सर्व, इस तरीके की चीज़ें आपने बहुत सारी सुनी हुई हैं। ये जो बनाती है इट इज इनटू एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमेबल। इंडिया की 6th लार्जेस्ट कंपनी इज इन्फोसिस। इसका काम भी सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये सेटअप है। सनफीस्ट, क्लासमेट, ये प्रोडक्ट्स आपने डेली सुने हुए हैं। जो कंपनी इसमें इन्वॉल्व है वो अभी इंडिया में 7वें नंबर पे आती है, नाम है उसका आईटीसी। 8वें नंबर के ऊपर सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। टेलीकॉम के क्षेत्र में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी जो अब ऑब्वियसली जियो और भारती के बीच में बहुत कंपटीशन है इस समय, 1 and 2 पोजीशन एक्सचेंज हो रही हैं। भारती एयरटेल is number 9 in India, and on number 10 is Bajaj Finance, which provides finance to people, loans to people, financial services. देखिए बजाज का इनिशियल नाम तो किस में बना था? स्कूटर्स में, फिर बिजनेस फेल हो गया था। फिर ये आए 3 व्हीलर्स में, फिर ये आए आपकी बाइक्स में, और उनका नाम वहाँ पे जाके दोबारा से बना और उससे इतना पैसा कमाया कि वो पैसे को वो उधार पे देते हैं। बजाज फाइनेंस has become India's number 10 company. जैसे मैंने इंडिया की टॉप 10 कंपनीज के बारे में बात करी है, आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट टॉप 10 कंपनीज इन वर्ल्ड, दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल मार्केट कैपिटलाइजेशन। द टॉप 10 कंपनीज आर, सब इनमें से काफ़ियों का आपने नाम सुना हुआ है, जैसे एप्पल आईएनसी, इंटरनेशनल कंपनी स्टैंड्स फॉर आईएनसी।
एप्पल क्षेत्र किस में काम करती है? फोन्स बनाना, आईपैड्स बनाना, आईपॉड्स बनाना, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी। नॉट बिहाइंड, सेकंड नंबर इज माइक्रोसॉफ्ट, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स बनाना, ऑफिस सूट्स बनाना, माइक्रोसॉफ्ट। कंपनी नंबर 2 सऊदी अरेबिया, जहाँ पे तेल की उपज या आप तेल का खनन बहुत ज़्यादा है, एक्सप्लोरेशन बहुत ज़्यादा है। ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में तीसरे नंबर पर वर्ल्ड की कंपनी है सऊदी आर्म। गूगल, जिसने अपना नाम बदल कर क्या रख दिया है, अल्फाबेट, अगेन अ टेक्नोलॉजी कंपनी। गूगल के सर्च इंजन्स आर पॉपुलर वर्ल्ड ओवर, गूगल मैप्स आर पॉपुलर वर्ल्ड ओवर, दे आर वेरी प्रिसाइज। गूगल की कई सर्विसेज हैं जिनका हम आए दिन यूज़ करते रहते हैं। गूगल लेंस इज़ वेरी पॉपुलर दीज डेज ऑल्सो। गूगल फोन्स वर देयर। सो गूगल अल्फाबेट टेक्नोलॉजी कंपनी, वर्ल्ड की नंबर 4 कंपनी। देन यू हैव another name which is known to you, Amazon. Amazon is a e-commerce company where you get almost all things। जो भी आपके दिमाग में है वे चीज़ आप Amazon से खरीद सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। डिलीवरी शेड्यूल बहुत फास्ट है, समय पर सामान आपको मिल जाता है। आपको पसंद नहीं आया आप वापस भी कर सकते हैं। Amazon is वर्ल्ड्स नंबर 5 कंपनी। गेमिंग आज की डेट में बहुत पॉपुलर है और गेमिंग करने के लिए हमारे को पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कार्ड्स चाहिए होते हैं, टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। निवीडिया इसमें बहुत माहिर है, टेक्नोलॉजी कंपनी है, वर्ल्ड में 6ठे नंबर के ऊपर ये फॉल करती है। देन वैरन बफेट का आपने नाम सुना हुआ है, वह मालिक है बर्कशायर हैथवे का, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करती है, अलग अलग कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करती है और आपके पैसे के ऊपर आपको अच्छी रिटर्न्स दिलवाती है। देन 8वें नंबर के ऊपर आती है बैंकिंग कंपनी HSBC, वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक आप कह सकते हैं HSBC, और कंपनीज के नाम पर 8वें नंबर पे फॉल करता है HSBC। Another very popular name that falls on number 9, जो आज की डेट में ई व्हीकल्स में बहुत काम कर रहा है, रिप्लेसमेंट ऑफ फ्यूल व्हीकल्स में बहुत काम कर रहा है, स्टेट ऑफ आर्ट व्हीकल्स बना रहा है, नाम है टेस्ला। एंड देन आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे आप आए दिन अपने विचार व्यक्त करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। जो कंपनी है जो ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है उसका नाम है मेटा प्लेटफॉर्म्स। सो दीज आर टॉप 10 वर्ल्ड कंपनीज। So this was little brief discussion about top Indian companies and top 10 world companies. Well, with this, my small module where I was trying to link you up with all 6 chapters of segment 2 of economics part 2, that is business commercial knowledge, comes to rest. If there are any queries from the students, I am ready to take that. Yes, please. Do you have to ask anything, students, or should I close? In case you will have any queries, you can take up those queries on WhatsApp also. I'll respond to that. So with this, I end up my lecture, and from my side, I would like to say that for your upcoming papers, you prepare well, you prepare through concepts, score well. My wishes are that you all pass through very good marks with flying colors. Thank you so much.